where languages don't divide, they unite कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती है। आज हमारे बीच दो अत्यंत आदरणीय एवं विद्वान संत उपस्थित हैं, मुनि श्री जागृत कुमार जी और मुनि डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, जिनकी उपस्थिति इस आयोजन को गौरव प्रदान करती है। यह कार्यक्रम भाषाई क्षमता, मानसिक एकाग्रता और मानवीय मस्तिष्क की अद्भुत संभावनाओं का उत्सव है। May we kindly request everyone to keep their mobile phones on silent mode and promises to be highly enriching and intellectually stimulating. We sincerely thank you all for joining us for this meaningful academic and जिनसे हमारे दोनों वक्ता जुड़े हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम अनुवृत्त विश्व भारती सोसाइटी, जिसका उद्देश्य शांति, जागरूकता, नैतिक जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। यह संस्था विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को साझा मानवीय मूल्यों के माध्यम से जोड़ने का कार्य करती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समाज और वैश्विक स्तर पर शांति, करुणा और समरसता की स्थापना करना है। With great respect, we now invite Muni Sri Jagrit Kumarji. He is a learned monk who harmoniously integrates ancient Jain philosophy with modern scientific thought. Renowned for his exceptional mental abilities, he is proficient in Avdhan, Satvadhani, and Sahasravadhani, reflecting extraordinary concentration and memory. A graduate in Jain philosophy, he has written on contemporary themes such as digital detox decoded and AI Atmic Internet, exploring consciousness and interconnected systems of intelligence. He also contributes to the translation of important Jain scriptures and actively guides individuals on the path of spiritual growth. He will display multilingual demonstration, an extraordinary display of linguistic ability and mental discipline, where knowledge flows seamlessly across 11 languages. He is an erudite scholar of the following languages, being French, Spanish, Italian, Russian, Chinese, Arabic, German, Dutch, Greek, Japanese, and Prakrit. Sir, we invite you to come and address us all. Demonstrating the intellectual acumen by speaking in 11 languages and switching it switching it swiftly. So importantly, we want 11 volunteers here who can come, who can raise their hands, who are going to take participation in this round. So any अब इस राउंड की शुरुआत आपसे करते हैं। आपका क्या नाम है? फ्रेंच। तो यहाँ फ्रेंच फ्रेंड आ गए हमारे, तो ओजोद्वी ही विल स्पीक इन फ्रेंच ऑफ रोसे। Je salue professore, respectore et cher ami, je suis Jagrit Muni. Je visité Hindu College Ozodvi. Je heureuse hoy. Je practiziere yoga, la meditatio et la pranayam. Je parlo multi long. Je suis a spiritual person. Je respectere mon Guru Acharya Mahashraman ji. Je sigo mon Guru. Je 1 मिनट होगी। 1 मिनट कंप्लीट हुई। तो ही हैज स्पीकन फॉर 1 मिनट. So we will do an Om Arham. Om Arham means a kind of applause because today is flower day. So we will show the symbol of flower and say Om Arham. Everybody in the crowd, Om Arham. Now we move to the level 2. आप अब नीचे आगे बढ़िए आप. You can take a seat and shift to Greek. या सास काली मेरा हरिका पोसास
पोस इस्ते, सास मेरा, सास सेवा में, इसमें पॉली एव जेनिकोई, इसमें आफ्तार्मो, इरिनीस सास एसास, काली सास मेरा, इफ फरिस्तो। हाँ, तो अब हमने 1 मिनट का ये कंप्लीट किया है टाइमिंग, तो इनके लिए वापस करेंगे। तो इट्स a mode of learning where we are sharing a different kind of daring of sharing in a foreign language. And now we will shift to the number 3. Yes, आप आगे है ना? हाँ हाँ, अब आप आराम कर सकते, जैसे एक का कंप्लीट हो जाए वो नीचे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, इटालियन। Io sono जागृत मणि, io sono ein spiritual person, io rispetto professore e cari amici, io sono monaco jainista, io rispetto mein Guru Acharya Mahashraman ji, io studio la parapsychology, io तो 1 मिनट कंप्लीट हुआ इनके लिए। अगेन ओम अरम। अब हम नेक्स्ट लैंग्वेज में हाँ आगे चलेंगे। यस, जर्मन। ich ich जाग guten Morgen, ich bin bambino, ich bin sag aufwache, ich bin sag bitrete, ich bin sag कालीने, ich bin praktiziere योगा meditatio und प्राणायाम, ich felice oggi, ich esse ein Maltag। ओम। तो डांकी, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंटेशन। इनके लिए एक ओम अरम। अब नेक्स्ट हमारे यस, स्पेनिश, एस्पानियोल। Yo soy जागृत मुनि, yo parlo mucho idioma, yo sorrido, yo sorrido cuando dormir, yo sorrido cuando mangio, yo sorrido cuando despierto, yo cuando encuentro persona, yo cuando sorrido cuando salgo। ओम। तो इनके लिए करेंगे एक बार। दाजिया आओ, युआन जिंग रीमैन, नी मैन हाउमा, वा वो नी मैन, शिए नी मैन, वो हैन काइशी
वो हैन जांगी वाओ वाओ शिए शी छोंगो वो लाइजिए यी दियान नीमैन हैन यू शो जी नीमैन फी छोंगुओ ओम। तो इनके लिए करेंगे एक बार ओमरम। तो अब ओमरम के साथ शी शी का मतलब है थैंक्स इन चाइनीज। अब हम चलेंगे यहाँ से डच। इख फॉल्ज माइन गुरु इक हेल्प मोनसे इक स्प्राखन मल्टी तालेन इक बिन वांदाग ब्लाई इख लेखले आल इख लेखले आल इख वोत आल इख बिनफिन इख लेखले आल इख ऐसे इख लेखले आल इख बेंजिन इख इख कामिनो पुरला पाय ग्रुशे लहरेर रिस्पेक्टियरे ओ कारो आमीची। इनके लिए एक ओमरम। इसी के साथ हम नेक्स्ट राउंड पर चलते हैं। यस जापानीज। कोन्निचिवा ओहायो गोजाइमासु इंदो कारो किमाशिता हाजिमे माशिते ओ हाजिमे मासिते ओ डोंकी का हाइवा वा कारिशिते योनि या इचिनिची ओ सुगोशी मिनशन ताकानुकी ओय। इनके लिए एक ओमरम। तो अब हम नेक्स्ट हमारे यस। अब केवल स्टेज पर 4 बचे हैं। चलिए यस आपका नाम रशियन। प्रिव्येत दोबरे उत्तरो दोबरे पाजालवित ओचेन प्रियात्नो पोजनाको मित्स्या काक वी या पोरियातके या स्कात्सलिव स्पासिबो ओचेन दोबरे या द्रुग उद्रुगा मीरवान खोरोसेगो दिन्या दसवे दान्या। इनके लिए एक ओमरम। अब इस नेक्स्ट क्रम में लास्ट 2 यस अरेबिक। सबह आल खायर अहलान व सहलान बिकुम शाहिद बिलिका इकुम आना शाहिद सुकराम लुकुम आना मुमतान तहर अफहान कालिलुम अंतरान अस्सलाम वालेकुम मा अस्सलामा नाता आल मना बिलमाद। तो इनके लिए अगेन ओमरम। अब हमारा लास्ट मेंबर है यहाँ पे यस प्राकृत। तो प्राकृत भाषा में भी ये कहेंगे यस। अहम जग्गी मुनि अहम जैण मुनि अहम वदामि सदा हस अहम उठे हसामि अहम अहम सए हसामि अहम पवीसे हसामि अहम मित्ते मिले हसामि अहम सदा हसामि अहम पुब्ब जन्न कम्मे
करेमि अहम परमानस विद्या सिखामि अहम जाणम प्राणायामम करेमि अहम बहुभाषाओ वदामि अहम अहम प्राकृत आगम अध्ययनम करेमि। इनके साथ ओम अरम। तो हाँ, आप भी आराम ले सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो हमने 11 इंडिविजुअल्स, ब्राइट इंडिविजुअल्स के मुनि जी को सुना है। So for the first time, we have participated in this way, and such events are also rare to be seen. And this has been organized on International Mother Language Day, which was just 2 days back. On that occasion, we have taken this initiative, and now we would listen from Muni Jagrit Kumar ji, how he has memorized these things or how he has learned these things, what has been the fascinating journey. उससे पहले अब एक मल्टी लिंग्विस्टिक का एक अलग टैलेंट पर हम थोड़ा काम करने जा रहे हैं। तो अभी मुनि जी के लिए 5 ब्राइट इंडिविजुअल्स को स्टेज पर आना है। यस, एनी 5 कैन कम अप ऑन द स्टेज। एनी संस्कृत, यू आर संस्कृत, संस्कृत भी हो गया, प्राकृत नहीं, क्या गुजरात, हिंदी विश्वविद्यालय है ना, हिंदी में आपका, ठीक है। ये 5 लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन है। आपको अभी इस बार लैंग्वेज के साथ साथ एक टॉपिक बोलने का मौका मिलेगा। आपको मन में जो टॉपिक आ जाए आपको बोलना है। जैसे आप मैडम है तो आपने बोला गुजराती में, ગુજરાતીમાં એર હવાના પ્રદૂષણ ઉપર બોલવાનું છે। તો હવાના પ્રદૂષણમાં મારામાં બતાડ્યું છે તો દિલ્હી તો એનું સૌથી મુખ્ય કેન્દ્ર છે હવાનું પોલ્યુશન માટે। હવાનું પોલ્યુશનના બહુ પ્રદૂષણનો આપણે બહુ બધા સફળ ઉપાય કરી શકીએ છીએ, કેમ કે હવાનું પ્રદૂષણ એવી વસ્તુ છે જે આપણે સ્વાસ્થ્યને બહુ હાનિકારક છે। તો હું સોલ્યુશન પર ફોકસ કરવા માંગુ છું। પ્રોબ્લેમ તો તમને ખબર જ છે, પણ એનું સોલ્યુશન શું છે, એનું સમાધાન શું છે? તો સૌથી સારું સમાધાન એક જ છે કે એક તો જે તમે ગાડીઓ વાપરો છો તો આજકાલ ઈવીની ગાડીઓ બહુ વપરાય છે, તો એના તરફ કેવી રીતે આપણે જઈ શકીએ છીએ। ને બીજું જે સમાધાન છે એના માટે કે આસપાસમાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જો એરિયા છે એના ઉપર કેવી રીતે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આપણે લગાવી શકીએ છીએ। ને અમે એમ પણ સાંભળ્યું છે કે હરિયાણામાં પણ જે ખેતીવાડી કરે એના જો એક્સ્ટ્રા જે વસ્તુઓ બચે છે એનું એ લોકો સળગાવે છે, ને એ સળગાવે એ કારણથી અહીંયા એ પોલ્યુશન ધુવાડો આવે છે। તો એનો પણ કેવી રીતે ઉપયોગ સારી રીતે કરી શકે કે એ ના થાય। तो इनके लिए ओम है। तो अब हम My name is English and my topic is botany. हाँ, बॉटनी बॉटनी, बॉटनी, Plants. ओके। हाँ। तो बॉटनी के बारे में अब मुनि जी बताएंगे। ऑन बॉटनी, हाँ, yes. स्पीक इन बॉटनी। So botany is a very good topic. I think so. Normally, people used to see that plants are non-living beings. Previously, people used to see like this, but nowadays, everybody knows that Sir Jagdish Chandra Bose proved that plants are living beings. And I read a good, fascinating book named as Secret Life of Plants, in which it was shown that plants also have thoughts. Plants also have emotions and feelings, and they can also do telepathy. Is the biggest thing. When they are connected with the owner, even the owner is been in US, if he is in stress, automatically that plant will also will be in stress. So this has been proved in that book also, and there is a great documentary also, Fantastic Fungi, which also shows that how the forest is also interlinked, intertwined, and each and everything is interconnected, which Jainism says parasparopagraham jivanam, and which we see in Hindu Vasudhaiv Kutumbakam. Oh Mara. इनके लिए भी है। हाँ, आपने स्टार्ट कर दिया। यस, हाँ। मेरा नाम हिंदी है और मेरा टॉपिक है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत पर ये हिंदी की प्रांजल भाषा में प्रस्तुति करेंगे। तो आधुनिक भारत में एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि
यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग है यंग, और अच्छा जमेगा अगर इनमें रंग, तो फिर हर कोई हो जाएगा संग, और भारत का विकास देख करके सब हो जाएंगे दंग। और इसीलिए आप जुड़े हो यहाँ पे महाराज के साथ करने सत्संग। तो मैं समझता हूँ एक ही चीज आज बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि तो आपने जैसे ही छोड़ा लीक तो आप पहुंचोगे पीक, और तभी बात बनेगी ठीक। तो सबसे बड़ा लीक क्या है आप कि वो लीकेज है डिजिटल गैजेट्स, स्क्रीन एडिक्शन। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि इस नशे से दूर हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा नशा है। तो हमारा कहना ये है कि अगर इसके प्रति रहेंगे डिस्ट्रैक्टेड तो अपनों के साथ कैसे करेंगे इंटरैक्ट, और इसी के कारण से हम कैसे करेंगे अच्छी चीजों को अपने प्रति अट्रैक्ट। तो उसलिए नहीं होना इन चीजों से हमको डिस्ट्रैक्ट। इनके लिए भी है इसी क्रम में। यस, मेरा नाम संस्कृत है और मेरा टॉपिक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट संस्कृत में करना है। संस्कृत संभाषणम। संस्कृत में तो आप बोल रहे पब्लिक में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट क्या होता है? स्टोरीज। तो हम चाहेंगे कि एक स्टोरी संस्कृत में मुनि जी सुनाए, एक कथा जिससे सब लोगों को एक इंटरेस्ट बना रहे। यस, तो आप उसको डिकोड करने की कोशिश करना मैंने क्या बोला है। पर शॉर्ट स्टोरी बड़ी अच्छी स्टोरी है। तक्र पात्र अस्ति तत्रे मंडूकद्वयं पतति, एकः मंडूकः चिन्तयति पात्रता बहु विशालतया अस्ति, सः चिन्तयति अहं परिश्रमं प्रयत्नं करोति, बहु प्रयत्नं करोति, केन कारणेन सः पात्रतः बहिः न आगन्तुं सः चिन्तयति किमपि किंचिदपि प्रयत्नं करोति, अहं पात्रस्य बहिः न गन्तुं शक्नोमि, तेन कारणेन प्रयासं स्थगयति, सः पतति मरयति। द्वितीय मंडूकः स चिन्तयति मरणपर्यन्तम् अहं परिश्रमं करोमि, कालान्तरं सः अपि श्रान्तः भवति, पतति, प्रातः उत्थाय स पश्यति अहमपि प्लवति स्म। केन कारणेन प्लवति स्म? केन कारणेन प्लवति स्म? एकस्य कारणेन सः प्लवति स्म, पात्रस्य तक्रस्य सः प्रयत्नं करोति, तेन समये नवनीतम् उत्पन्नं भवति, नवनीतस्य प्लवनस्य कारणेन सः अपि प्लवति स्म। शीर्षक यह प्रयत्नं करोति सः विजयं भवति। इनके लिए ओमरम। तो इसी क्रम में यश लास्ट राउंड। सर मेरा नाम मालवाड़ी है और मेरा टॉपिक वीगनिज्म। वीगन मारवाड़ी रे मायने ओ वीगन के बारे में जानना चाहे। तो वीगन रो टॉपिक घणो अच्छो टॉपिक है, और मैं मान रहा हूँ कि भारतीय में वीगनिज्म तो पहले शू है, क्योंकि भारतीय जी का लोग है वे काफी हद तक शाकाहारी हा, पर आजकल जिका मांसाहारी लोग हाँ विमें भी वो चीज़ा बहुत चाल रही है। तो लोगों के मन में घनी बड़ी कंफ्यूजन रहे, तो इके वास्ते में एक थोड़ो सो बात कर रही हूँ। कंफ्यूजन ये कि भाई नॉन वेजिटेरियन अगर मैं खावा तो माने B12 की कमी भी पूरी हो जावे, विटामिन सी की भी, प्रोटीन की भी कमी पूरी हो जावे, पर वो जी धारणा है वो बहुत गलत धारणा है। इके वास्ते मैं आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री केवा, और वारो नाम है द गेम चेंजर। विमे आर्नोल्ड जिको मसल मैन के रूप में प्रसिद्ध हो, जितनी भी मीट की एडवर्टाइजमेंट आती ही विमे वो आतो ही आतो। वो आर्नोल्ड आज यहाँ की बात करे कि भाई मीट खायो में वो सबसे गलत काम करियो, और मीट ने प्रमोट करो और वो सबसे और गलत काम करियो। तो बोले मैं तो जिया ही वीगन बन गयो, मारी तो जीवन सुधर गई। और वियाकली डॉक्यूमेंट्री सगला ने देखनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई
કે ખાઓ નહીં ખાઓ પણ ઠાકોર जी को पर्सपेक्टिव है, जी को दृष्टिकोण है वो बदल जासे, वो पक्की बात है कि जी को थे विगनिज्म के बारे में सोच रहा हा वो एकदम आपने ठा पड़ जासी। और सबसे बड़ी बात है कि जी का रोमन सोल्जर हा, जी का सबसे प्रबुद्ध और सबसे शक्तिशाली सोल्जर हा, इतिहास में वाका जी का अंश हा वे देखा तो ठा पड़ी कि वे भी काय हा वेजिटेरियन हा। तो विकी वो डॉक्यूमेंट्री में वो सब बात बताई है, तो जरूर देखो, गेम चेंजर। तो इनके लिए भी एक। तो अब हमारा, हाँ बिल्कुल सुना। अब हम नेक्स्ट राउंड पे जा रहे हैं, वो है डिकोडिंग सेशन, कि कैसे मुनि जी ने ये यात्रा की है, कि कैसे उन्होंने इतनी 11 भाषाओं का अभ्यास किया, 5 भाषाओं में एनी टॉपिक पर बोलने की तैयारी की है, किस तरह की उनकी यात्रा चल रही है, और कैसे हम सब लोग भी इस चीज़ों को और डेवलप कर सकते हैं। तो बी पॉलीग्लॉट के ऊपर वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहेंगे मुनि जागृत कुमार। So, biggest question arises in the era of AI, ChatGPT, why we need to learn so many languages? Because we can translate those languages instantly at the same time. You are speaking and that gadget is translating. So why we need to learn so much of languages? I think so you must be having the same question. So I would like to give some end points which will help you to know how, why you need to learn so many languages. First of all, meaning and emotion. If you want to connect with the person, you need to talk in their own language. Until and unless you don't talk by heart, he will not be able to connect with you informally. Formally, you want to connect, you can use the gadget. So I have seen myself also, the people staying with me, many of the people are Marwadi. When we meet a Marwadi politician, when we talk in Marwadi, he gets totally connected. When we meet a Gujarati politician, when we talks with Gujarati, it gets totally connected. So main thing is connecting the emotions. The second thing is mind muscle. As you all people do gymming in order to have biceps, triceps, whatever you say. We care for these muscles, this body, this physical health. But what about your brain muscle? So the brain muscle should also be have gymming, and that can be done by this multi-language skill. Because today the biggest problem is brain rot because of digital distraction, digital overuse, misuse. The people's brain is getting rot, and problems like dementia, Alzheimer are getting at very young age. So when person learns a language, automatically this problem of memory also gets overcome. So memory is the biggest issue, and to overcome we need to learn a language which will help you throughout your life. And second thing is, even though AI is there, but AI can replace many of the things. Even doctor is not needed. Even teachers, the AI can do the work of the teachers also. So it doesn't mean that we should not give our efforts. If we will not be giving efforts, we will totally rely on AI. What will happen? Homo sapiens will get extinct. Atmic internet and apna intelligence is much more necessary than that of artificial intelligence and that alien intelligence. I don't say artificial intelligence as artificial intelligence, but I say it as alien intelligence because we don't know. Researches are going on. So main thing is memory, and the most foremost thing is, as you learn a language, you are able to connect multi cultures, multi ecosystem. You are able to know multi dimension thinking, because more the merrier. When you learn a language, you are able to know the mentality of that person also. So why we need to learn language? Because of this and things which I said to you. And the last thing is mindfulness. In order to have a focus,
because focus is very necessary when you opt for big examination, whichever we say UPSC, whether CA, CS, anything. And in that, I think so language can help you a lot to learn and to have a great focus. And many of the big people, influential people, know more than 5 languages, including lots of people. You can search on the net and they'll know more than 5 languages. So, the main thing, in order to, as I said, I talked about digital detox. So, I am not against the digital revolution, it's a great thing. I am against the toxicity. I am not against the tonic content that you are watching. But I need to say that even if the tonic has been used excessively, then also it will be a big problem. What about transformation? And many of the people of you are very hard working. At night also 12 o'clock you are online, लगे हुए हो, चाहे सीरीज है चाहे इंस्टाग्राम रील्स है, 1 o'clock यू आर ऑनलाइन. मम्मी आती है एक, अब तो भावना रखो नेक, मम्मी अभी तो हुई हूं मैं वेक, मोबाइल को क्या मैंने टेक, वाई यू आर टेलिंग मी अगेन एंड अगेन. दो, मम्मी कहती अब तो करो मोबाइल को नो, मॉम यू गो, यू शुड नो, चेहरे का बढ़ रहा है मेरा ग्लो, वाई यू आर कमिंग अगेन एंड अगेन एंड मेकिंग मी फील लो, आई वॉन्ट टू ग्रो, सो आई एम वॉचिंग इंफोटेनमेंट सीरीज. अब उसमें क्या क्या हो जाता है वो तो आपको पता है. 3, अब तो हो जाओ फ्री, बोले अभी तो चालू हुआ है, और आपने ही बोला है जो काम हाथ में लो उसको पूरा करके छोड़ो. तो सीरीज में क्या है, 3 एपिसोड हुए हैं, 3 बाकी अभी. तो मेन बात है कि इट इज नेवर एंडिंग, and because of this lots of mental issues are coming, whether it is insomnia, anxiety, stress, anger, lots of mental. And I think so 98% of the problems are psychosomatic, means your mind is hampering your body because of this sleep cycle, and because of those toxic content your mind is becoming a garbage. What I think so. And for that we need to do one thing, that is fasting. As you do fasting in food, you don't eat food for the whole time, for the whole day. Did you eat full food for the whole day? No. So what you do? You have particular gaps, 2 hour, 3 hour gaps. और उस गैप से क्या होता है, you remain healthy. And today fasting has been proved. Digital diet, Dikshit diet, and lots of fasting has been proved that how it also helps to cure cancer problem, which is known as autophagy in the research field, and that person has also got Nobel Prize for it. So in the same way, today we are eating which food? Not physical food. Today we are eating digital food. So we need to do what? Fasting. जब करेंगे डिजिटल फास्ट तभी तो दिमाग चलेगा आपका सुपर फास्ट, नहीं तो लाइफ में रहेंगे हमेशा लास्ट, इमोशनल होते रहेंगे ब्लास्ट. चाहते हो कि हर कोई करे आपको ब्रॉडकास्ट, तो फिर करना पड़ेगा डिजिटल फास्ट. तो डिजिटल फास्ट बहुत जरूरी है. तो 3 थिंग्स आई विल लाइक टू टेल यू. MSD, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप जो भी चीज लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो लीकेज को हटाओ. तो लीकेज हटाने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मील टाइम पे कोई भी प्रकार का डिजिटल गैजेट नहीं. सेकंड इज स्क्रीन टाइम, सेकंड इज स्लीप टाइम. रात को 12 से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल भी यूज नहीं करना. प्रोजेक्ट है कुछ इमरजेंसी अलग बात है, बाकी यूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी. तो एज फॉर स्लीप टाइम. D for driving, because 7 out of 10 accidents are caused because of using digital gadgets during driving. वो आप सोशल मीडिया पे बहुत देखते होंगे. तो MSD, M for meal, S for D for driving. तो M, S and D. तो ये आप फॉलो करोगे तो सब लोग साथ में हाथ जोड़ेंगे और एक प्लेज लेंगे
I take a pledge to follow this MSD challenge for 1 year, and I would do it by heart because I want to achieve my inner peace, positivity, and purpose. Wonderful. एंड क्या जाएगा पन्ना, और ये जो पन्ना है ना, इसमें छोटे छोटे वोव्स दिए हुए, छोटे छोटे एटॉमिक वोव्स। ये आपको आंख बंद करके ग्रिड को ऐसे करना है, जो नंबर आएगा वो हिसाब से आपको देखना है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी फास्टिंग आपके लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट ला सकती है, क्योंकि जैसे एटॉमिक हैबिट्स में कहा गया ना कि छोटे जो वोव्स होते हैं वो बड़ा अचीवमेंट करते हैं, वैसे ही हमारा जो संस्था है अणुव्रत विश्व भारती, तो अणुव्रत का मीनिंग भी यही है। अणुव्रत जो 75 ईयर्स से है, मीन्स एटॉमिक वोव्स हेल्प्स टू क्रिएट बिग ट्रांसफॉर्मेशन, टू क्रिएट बिग चेंजेस इन योर लाइफ। तो ये मैंने बात कही। अब बात हम इसमें आते हैं कि लैंग्वेजेस तो हमने बोली, पर आपको कितना दिमाग में उतरा नहीं उतरा, बाउंसर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। पर कौन कौन जानना चाहता है कि हाउ वी कैन लर्न एनी फॉरेन लैंग्वेज विद इन फ्यू मिनट्स? कौन कौन जानना चाहता है? तो आई वुड लाइक टू जस्ट गिव वन टेक्निक टू यू। टेक्निक बहुत सारी है, पर एक जो मास्टर टेक्निक है वो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प कर सकती है, और वो आपको स्लाइड पे दिखाई जा रही है। तो आप ये देखिए, जैसे ये हेलो हेलो के लिए बहुत चीजें दी हुई है। चाइनीज में नी हाउ दिया हुआ है, रशियन में प्रिव्यट, प्रिव्यट भी आता है और ये भी आता है, अरेबिक में मरहबा, जापानीज में कोन्निचिवा। तो ये आपने, मैंने भी बोला तब भी आपने थोड़ा थोड़ा ये सुना होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे एक बार कि कैसे हम याद करते हैं। अब आपको क्या करना है, पहली लैंग्वेज कौन सी है? चाइनीज। तो चाइनीज में फेमस कैरेक्टर कौन है? जैकी चैन। तो जैकी चैन को जैसे आपने हेलो बोला, उसने क्या दिखाया? नी हाउ। उसने क्या दिखाया आपको? उसने रिएक्ट किया कि नी हाउ, मतलब आपका नी कैसा है, क्योंकि वो स्टंट बहुत करता है ना, तो उसके लिए क्या है, वो पूछ रहा है नी कैसा है। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। तो चाइनीज की जितनी भी चीजें आप याद करोगे, तो आपको जैकी चैन को कैरेक्टर के रूप में रखना है, क्योंकि जो भी चीज होती है वो याद आप ऐसे मगअप करोगे तो नहीं होगा। पर आप याद कीजिए, आपको 5th स्टैंडर्ड की 10th स्टैंडर्ड की बुक याद नहीं होगी, पर आपको ये जरूर याद होगा कि भाई 3 इडियट्स में कौन कैरेक्टर था, क्या स्क्रिप्ट थी, याद है नहीं है? वो एक ही बार आपने मूवी देखी और दिमाग में लाइफ टाइम इंप्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रेन कैप्चर एवरीथिंग इन इमेजेस, नॉट इन वर्ड्स। तो जब आप वर्ड्स लोगे तो आपको भूल जाओगे, पर इमेजेस में लोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। तो उसलिए हमको क्या करना है, वर्ड्स को क्या करना है, इमेजेस एंड इमोशंस में कन्वर्ट करना है। वैसे ही हम देखें रशियन में फेमस व्यक्ति कौन है रशिया में? पुतिन। तो पुतिन में हमने प्रिवियत ले लिया, प्रिवियत। पुतिन को हाई जैसे ही बोला, मान लो आप कैरेक्टर हो, आप पुतिन को हाई बोल रहे हो, तो पुतिन ने क्या बोला? प्रिवियत। प्रीवियस ऐसे कर, प्रीवियस कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो ऐसे कर रहा है प्रीवियस। अब ऐसे तो 2 मीनिंग हो जाते हैं, मेंटल भी होता है। अब इतना वॉर हो गया, सब कुछ हो गया, 5 साल उसमें ही लगा दिए, पर हम उसकी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। पर हम कह रहे हैं कि वो क्या रिएक्शन कर रहा है? प्रीवियस। अभी उसको गिल्ट भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए वो प्रीवियस कर रहा है। तो आपको ऐसे करना है, मतलब पुतिन को रिएक्ट करते हुए देखना है, विजुअलाइज करना है पुतिन ऐसे कर रहा है, ठीक है। फिर कौन सा है? अरेबिक। अरेबिक में कौन है फेमस व्यक्ति? अलादीन, एकदम परफेक्ट। तो अलादीन क्या बोल रहा है? मरहबा। क्योंकि अलादीन को जैसे हेलो बोला ना, तो अलादीन क्या बोल रहा है? बोले भाई मिडल ईस्ट में तो आए दिन वॉर होते रहते हैं, तो मरने जैसा हालात है इधर, तो मरहबा। क्या है? मरहबा। फिर कौन है? जैपनीज। जैपनीज में कौन दिमाग में आ रहा है आपके? हाँ, आवाज नहीं आ रहा।
अच्छा डोरेमोन, अभी देखो कौन सी दुनिया में रहते हैं। डोरेमोन को ले सकते हैं, कोन्निचिवा। तो डोरेमोन क्या कर रहा है, जैसे आपने हेलो बोला, हाय बोला डोरेमोन को, तो डोरेमोन ने क्या किया, डोरेमोन ने अपने वो जो पिटारा है ना उससे कोन निकाला, बोले कोन, आइसक्रीम कोन, कोन्निचिवा, कोन्निचिवा। तो इस तरीके से फिर कौन सी है, फ्रेंच। फ्रेंच तो बहुत कॉमन है। फ्रेंच में कौन सा वर्ड है पहला, बोंजू। तो अच्छा कोरियन भी है, उसने कोरियन पे आपके, हाँ कोरियन, ओके ओके ओके। कोरियन में क्या आता है, अन्योंग हत्से। और कौन सा है, तो कोरियन में तो आपको बहुत कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, वो आप पे छोड़ देते हैं क्योंकि वो बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसी तरह से आप हर एक लैंग्वेज का कैरेक्टर लेकर के उसको वो भाव बता करके फिर उसका रिएक्शन देखो, और इससे आपको वो लैंग्वेज याद हो जाएगी। और जैसे लैंग्वेज याद होगी फिर धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ड्रिल हो जाएगी, और फिर आपको इस कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग से अंदर से आएगी। तो दिस इज हाउ वी ऑल्सो लर्न दिस लैंग्वेजेस। और इसमें और भी टेक्निक है, कभी हम शेयर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसकी नेक्स्ट स्लाइड करनी है, हाँ ठीक है। तो आप ये देखिए सबसे ज्यादा जो मुश्किल लैंग्वेज होती है ना, वो कौन सी होती है लोगों को जो लगती है, चाइनीज। चाइनीज सबसे डिफिकल्ट लगती है, पर मैं मानता हूं चाइनीज इज द इजिएस्ट। वाई सो, किस किस को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है, बच्चे थे तब से हम स्टोरी से कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते थे, तो चाइनीज भी स्टोरी ही है। अब ये देखिए सिंपल सी चीज हमने ली, चाइनीज का जो सबसे पहला कैरेक्टर है ना वो होम का है। किसका है, होम। अब ये भले कैरेक्टर दिख नहीं रहा है, जो कैरेक्टर दिख रहा है होम के बगल में आपको, आप जब गूगल में भी जाओगे ना तो आपको अच्छे से दिखेगा। और ये ऊपर जो है ना, अब इसमें भी कुछ स्टोरी है, ये ऐसे नहीं बना। पुराने जो लोग होते थे वो आपको बताना जब चाहते थे तो वो क्या करते थे, ड्राइंग करते थे, और ड्राइंग के थ्रू उन्होंने क्या किया, वर्ड्स को कन्वर्ट किया। तो ये भी उन्होंने ड्राइंग किया जो हर कोई बना सके। तो सबसे पहला जो ड्राइंग है होम का, तो उसमें हम देखे सबसे ऊपर तो रूफ है, और नीचे वाला जो सिंबल है ना वो पिग का सिंबल है, पिग, सुअर। वहां आप देखते भी हो उसका ऑयल काफी मिलता है खाने में भी, मतलब पोर्क जो भी है। पर मेन बात है कि उस समय पे ये माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति घर परिवार वाला होता है उसके घर पे रूफ के नीचे पिग्स होने चाहिए, मतलब वो फैमिली कंप्लीट है और वो यहीं पे रहेंगे मतलब। तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया, होम। ये सिंबल हो गया होम। सेकंड क्या है, रेस्ट। तो रेस्ट आप देखिए दो सिंबल से बना है, एक आदमी और एक ट्री। क्योंकि जब पुराने जमाने में खेत होते थे ना, तो आदमी जब भी रेस्ट करने जाता तो वो क्या करता, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता, तो इसलिए क्या हो गया वो रेस्ट। फिर क्या है, गुड। अब गुड में आप देखो, क्योंकि सबसे बेस्ट रिलेशन, सबसे यूनिक रिलेशन, बॉन्डिंग वाला रिलेशन कौन सा होता है, माँ बेटे का होता है। इसलिए आप देखो लेफ्ट हैंड साइड मदर का सिंबल है और राइट हैंड साइड क्या है, बेटे का है, बच्चे का है। तो माँ है ना वो बेटे को ऐसे एक तरह से करने की कोशिश करे, तो उसको उन्होंने पिक्टोरियल वे में बताने की कोशिश की। फिर कौन सा है, डेंजर। तो डेंजर में देखो वो क्लिफ है, क्लिफ, क्लिफ जो होता है पहाड़ के नीचे, तो उसमें कैसा लिखा है कि एक आदमी दूसरे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह से वो क्या बन गया, डेंजर। तो इस तरह से अब ये देखिए लिसन का जो सिंबल है ना वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सिंबल है, बड़ा मतलब उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल चुके हैं एक साथ, उस सब कैरेक्टर्स की कुछ ना कुछ स्टोरी है। इसमें कुल मिलाकर के 4 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर है, 4। एक कैरेक्टर ये बताता है, जैसे ईयर बताया है इसमें, ईयर, किंग, आई एंड हार्ट, ये 4 है। तो ये 4 से लिसनिंग हो जाती है। तो देखो कितनी अच्छी मैसेज भी इसमें दिया हुआ है कि आदमी को जब किसी को सुनना है ना तो उसको क्या करना है, कान लगा के सुनना है। दूसरा बात का मैसेज दिया है
कि उसको राजा मानो, किंग मानो। किंग को कोई बड़ा व्यक्ति अगर बोलता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो आप हर किसी को, जिसको भी आप सुनना चाहते हो, उसको किंग मानो। थर्ड क्या है? कीप अ आई ऑन हिम, आई टू आई कांटेक्ट रखो। फिर क्या है? हार्ट, किससे सुनो? दिल से सुनो। तो देखो मॉरल मैसेज के साथ बताया जा रहा है। तो मैं यही कहता हूं कि जो नेक्स्ट, अब ऐसा ही मतलब चाइनीज में सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही बने। अब देखो कुछ स्टोरीज मान लो आपको इंटरनेट से या बुक से मिल सकती है, पर कुछ स्टोरीज क्या है, आपको क्या करनी पड़ेगी? बनानी भी पड़ सकती है। आप खुद डायरेक्टर भी बन सकते हो इसमें। जैसे इसमें मान लीजिए प्रिजनर के लिए ये एक डायग्राम आता है। तो प्रिजनर आप देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक क्या दिख रहा है? बॉक्स दिख रहा है। बॉक्स में क्या है? एक पर्सन है, एक आदमी है। तो ये जो आदमी है बॉक्स में बंद हो गया, तो ये क्या हो गया? प्रिजन। वैसे ही आप देखो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं? 3, 3 ट्रीज, वो क्या हो गया? फॉरेस्ट। तो इस तरह से और भी चीजें हैं, पर मैं कहना ये चाहता हूं कि इस प्रकार से हम कोई भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, और सीखने से हमको क्या फायदे होते हैं वो हमने जान लिए। भले एआई है तो भी वाई वी शुड लर्न अ लैंग्वेज इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और आखिर में मैं इम्पोर्टेंट बात आपको कहना चाहूंगा कि लाइफ में स्ट्रेस का एक ही सबसे बड़ा एंटीडोट है। कोई भी आदमी स्ट्रेस में आएगा तो वो एक चीज को खाली फॉलो करेगा तो उसका सब काम हो जाएगा। जो मैंने अपनी स्पीच में भी बार बार कहा था, स्पीच में भी कुछ कुछ जगह मैंने ये पॉइंट लिए थे, किसी ने गौर से सुना हो तो। क्या लिया था? कौन सी वैसी चीज है जो हमारे चेहरे पे होती है? स्माइल। तो हम एक बात कहते हैं कि नहीं, हमको क्या लेना है? स्माइल। तो स्माइल कब कब करनी चाहिए? कब करनी चाहिए? 6 टाइम। वेक अप विथ स्माइल। व्हेन यू एंटर anybody's place or your home, you should enter with smile, exit with, eat with, meet with, no mobile when you eat and when you meet। खाली क्या रहनी चाहिए? स्माइल। तो 6 टाइम स्माइल। अगेन रिपीट, फर्स्ट एंटर विथ, फिर वेक अप विथ, स्लीप विथ, फिर मीट एंड ईट। अब एक साथ बोलेंगे, फास्ट बोलेंगे, बोलिए। तो ये स्माइल, एंटर विथ स्माइल आपको मिला हुआ है। इसको आप कहां लगाओगे? अपने आगे वाले के पीछे, पीछे लगा देंगे मस्ती करके। तो इसके लिए आपको नहीं दिया जाएगा, नहीं लगाना है। कहां ले जाना है इसको? घर पे। कहां लगाना है? दरवाजे पे। तो जब तक आप किसी को एंटर नहीं करने देना, जब तक उसके चेहरे पे स्माइल में। तो नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, जस्ट स्माइल कार्ड। तो